चलो लास्ट लेक्चर में अपना इतना कंप्लीट हुआ था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई साइक्लिक स्ट्रक्चर वाज नीडेड? बिकॉज ग्लूकोज कैन द linear structure of glucose cannot explain some things. The number one, despite having the aldehyde group, glucose doesn't give the 2,4-dinitro DNP taste, dinitrophenol taste. Second is Skipp's taste, and the third one is the NHSO3, because aldehyde containing compounds, all the aldehyde containing compounds give these reactions, but glucose can't. That means here CHO group is not present, and here we had seen in last lecture that this CHO group is not free in the cyclic structure, and here we are getting alpha and beta two forms. Again here CH and CHO functional group is not free in the cyclic structure, it is not in a free state. The pentaacetate, the second limitation is the pentaacetate of glucose, which contains CHO group free, but it cannot react with the hydroxylamine. Formula of hydroxylamine is NH2OH. Remember, formula is NH2OH. So it indicates that the CHO group is absent, but actually free CHO group is absent. CHO group is present, but it is not in a free state. Third one, glucose is found into different crystalline forms which are named alpha and beta, and both are crystallized from water by heating in the water by different temperature. First is a 303 Kelvin, another is 371 Kelvin. Both have different melting points, and both are crystallized at different temperature. Alpha is crystallized at 303 Kelvin and beta is crystallized at 371 kelvins. So these types of questions can be asked. Okay students, so remember this. Next is, this behavior could not be explained by the open chain structure. It was proposed that one of the OH group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. देख लो, इस स्ट्रक्चर का नाम है हेमीएसिटाल. ओके, इस स्ट्रक्चर का नाम है हेमीएसिटाल. ये जो फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में जो अटैचमेंट हो रहा है ना, इसका नाम है हेमीएसिटाल. ओके, चलो. It was found that the glucose forms a 6-membered ring. अब ये जो रिंग बनती है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इंडिकेट किया है, ये है फिशर प्रोजेक्शन. ओके, ये है फिशर प्रोजेक्शन, इसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन. ओके, चलो, जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में अटैचमेंट है. और ये डिफर कैसे होंगे? फर्स्ट पे अगर H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, देन दिस वन इज अल्फा, देख लो. और OH लेफ्ट हैंड साइड एंड H राइट हैंड साइड, देन इट इज अ बीटा. नेक्स्ट, so two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1. And this carbon atom, which is responsible for this alpha and beta function, alpha and beta isomers. तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का नाम है एनोमेरिक कार्बन. अगेन these are named as anomeric carbon atom. ओके, और ये एनोमेरिक कार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोजीशन यहाँ पे चेंज होती है. किसकी? H और OH की. इफ H इज अपर साइड, OH इज डाउन साइड, देन दिस वन इज अल्फा. इफ OH is at upper side, H is at down side, then it's a beta. Okay, so such isomers, that is alpha and beta, are known as anomers.
and these structures are based on the compound pyrene. See, this is the pyrene, in which it's a 6-membered ring. There are 5 carbon atoms and 1 oxygen atom having 2 double bonds. So इस कंपाउंड का नाम है पायरेन, और जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इसके बेस पे ही है. सो इट इज नोन एज ग्लूकोपायरेनोज. और कौन सा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरेनोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज. अल्फा एंड बीटा दोनों में डी ही लिखा है. चलो, कैपिटल डी का मतलब क्या है कि जो 5th की जो पोजीशन थी ना, उसके हिसाब से हम HNOH जो पोजीशन थी उसके हिसाब से हम ये कैपिटल डी लिख रहे हैं. प्लस कैसे लिखेंगे हम? सो प्लस इज रिटन व्हेन द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टू left hand side, then it is a levorotatory, and right hand side, then it's a dextrorotatory. So again, अल्फा हम कैसे डिसाइड करेंगे? अल्फा और बीटा, तो वो हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ HNOH ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, दैट इज एनोमेरिक कार्बन एटम. ओके, सो अल्फा और बीटा आइसोमर्स चलो कंप्लीट हो गए. इसका नाम है पायरेनोज स्ट्रक्चर. ओके, इनका नाम है पायरोनेज स्ट्रक्चर, अल्फा एंड बीटा. इन एनालॉजी विद द पायरेन, एंड पायरेन इज द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम 5 कार्बन एटम्स. जो भी मैंने समझाया वो यहाँ पे दे दिया है. चलो, तो स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने होंगे. नेक्स्ट वन इज द बीटा. बीटा इज द सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज. और फ्रुक्टोज में fructose is a ketohexose, means ketone group is present, 6 carbon atoms are there, and it's a sugar. So ketohexose, it is obtained along with the glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose. चलो, fructose का structure देख लो. So in the structure of fructose, this one is the first one. दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन एटम. सेकेंड पे CO आएगा, कीटोन ग्रुप. थर्ड पे H और OH की पोजीशन चलो उल्टी है. फोर्थ पे H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड. फिफ्थ पे H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड. और सिक्स पे CHOH. और यहाँ पे आएगा D माइनस फ्रुक्टोज. D कैसे आया? पोजीशन ऑफ H एंड OH ऑन फिफ्थ वन. माइनस कैसे आएगा? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड टू लेफ्ट हैंड साइड, और फ्रुक्टोज इसका नाम है. तो D माइनस फ्रुक्टोज. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C6H12O6, सिमिलर टू द ग्लूकोज. ओके, चलो जस्ट अ मिनट. ओके, चलो, तो फिर हमने 1 to 6 यहां पे लिख दिया है. चलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 1 to 6 हमने जो नंबर लिखा उसमें सेकेंड पे कीटोनिक ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, 6 कार्बन एटम्स है. इट बिलोंग्स टू द D, कैपिटल D. इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फिफ्थ वन पोजीशन ऑफ H and OH ऑन फिफ्थ वन. इट इज अ लीवोरोटेटरी. ओके, ओके, तो यहाँ पे H और OH दोनों की पोजीशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. और H और OH कहाँ पे है? तो फिफ्थ पे देख लो, H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड. तो फिर इसको हम बोलेंगे कैपिटल D. और माइनस डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट विच इज रोटेटेड टू विच साइड. ओके, एंड दिस वन इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर. चलो, उसका दूसरा भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है. इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूरान. फ्यूरान में 5 मेंबर्ड रिंग, उसमें एक ऑक्सीजन, 1 2 3 and 4. ओके, तो यहां पे H और OH इस हिसाब से डिसाइड होगा. देख लो, चलो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. यहां पे H और OH कौन सी साइड होंगे? तो देखो, फिफ्थ में जो H लेफ्ट हैंड साइड है उसके राइट हैंड साइड वाला OH और सेकेंड के बीच में यहां पे कनेक्शन होगा. मतलब यहां पे एक जगह पे CH2OH आएगा. देख लो, so CH2OH is written based on the position of second one. Here second carbon atom is
here second carbon atom is anomeric carbon. Okay, and here also alpha and beta isomers are possible. Okay, so the cyclic structures of two anomers of fructose are represented by the Haworth projection. Okay, चलो, तो ये डिसाइड हुआ अल्फा और बीटा. तो यहाँ पे भी अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, लेकिन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसका नाम है फ्रुक्टोफ्यूरानोज और इसका भी नाम बीटा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज. ओके, चलो, तो फिर अब ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ. तो चलो, फ्रुक्टोज भी अपना कंप्लीट हुआ. स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है सुक्रोज के लिए. और बिफोर दैट चलो फटाफट टेक्स्ट बुक में ऐसा करो कि आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दो एक बार. और वो भी कौन सा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज. चलो, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं. फटाफट चलो. ओके स्टूडेंट्स, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यहां पे स्ट्रक्चर दिया है. अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्टूडेंट्स चलो एक बार फटाफट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं. अल्फा तो यहां पे आएगा स्ट्रक्चर तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. यहां पे आएगा H ऊपर, OH नीचे, हमें पता है. यहां पे आएगा H और OH. थर्ड पोजीशन पे आएगा OH एंड H. फोर्थ पे आएगा H एंड OH. और फिर सिक्स्थ पे CH2OH ऊपर और H नीचे. तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है. अब फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज क्या होगा, चलो हम ये देखते हैं. अभी फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज क्या है और हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हमने फ्रुक्टोज ऐसे ड्रॉ किया है, हमने जो पढ़ा है चलो पहले वो ड्रॉ कर देते हैं. ये सेकेंड नंबर हम राइट हैंड साइड लिखते हैं. तो यहां पे हम लिख रहे हैं यहां पे बीटा. बीटा में क्या आएगा? ऊपर OH आएगा और नीचे CH2OH आएगा. ओके, चलो, ये एनोमेरिक कार्बन एटम है. तो ऊपर आएगा OH और नीचे आएगा CH2OH. अगेन ऊपर आएगा OH और नीचे आएगा CH2OH. अगर हमने इसको पूरा उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब दिस इज अ प्लेनर सब्सटेंस, तो ये एक हम कागज पे ड्रॉ कर रहे हैं. और ये जो सेकंड पे जो ऊपर H और ऊपर OH और नीचे CH2OH है ना, ये एम्बेडेड है, मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे सेट है. बीच में हमने होल कर दिया है, ऐसे सेट होगा. और अगर हमने उसको उल्टा कर दिया, देखो स्टूडेंट्स, अब उसको हम उल्टा कैसे करते हैं, ध्यान से देखो. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमने स्ट्रक्चर लिया है, तो इस स्ट्रक्चर में अभी यहां पे सेकेंड नंबर है. ओके, अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी सुक्रोज बनेगा तो सुक्रोज में सेकेंड और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन एटम और ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम दोनों के बीच में अटैचमेंट होगा. अगेन अटैचमेंट कैसे होगा देख लो स्टूडेंट्स, यहां पे C1OC2 यहां पे अटैचमेंट होता है. C1OC2 मतलब ग्लूकोज का फर्स्ट वन
और फ्रुक्टोज का सेकेंड वन, अगेन ग्लूकोज का फर्स्ट और फ्रुक्टोज का सेकेंड। तो सेकेंड हम लिख रहे हैं यहां पे कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, और यहां पे तो जरूरत है C1OC2, तो 2 नंबर तो हमें यहां पे चाहिए। तो अगर हमने उल्टा कर दिया तो ये जो पोजीशन थी ना सब की सब उल्टी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। अगेन पोजीशन कैसे चेंज होगी, सेकंड और थर्ड की, सेकंड का नंबर यहां पे है, अगर मैं सेकंड यहां पे लिखूं तो फिर CH2OH जो हम नीचे लिख रहे हैं वो आएगा ऊपर, मतलब यहां पे CH2OH और यहां पे आएगा OH। ओके चलो थर्ड पे क्या होगा, तो देखो थर्ड की पोजीशन चेंज हो गई, H और OH। फोर्थ पे क्या होगा, OH एंड H, और फिफ्थ पे ऊपर H और नीचे CH2OH। अगेन एक बार फिर से देख लो, फर्स्ट पे यहां पे अटैचमेंट, सेकंड ये जो यहां पे अटैच हो रहा है तो हमने पूरा का पूरा ये उल्टा कर दिया। जो अपना जो पेज था उसमें हमने ऐसे लिखा है, अगर हमने उसको उल्टा दिया तो फिर वो इस साइड आ जाएगा, और जो ऊपर होगा वो डाउन होगा, और जो डाउन था वो ऊपर आ जाएगा। ओके और फिर अब C1 और C2 में एक लिंकेज है, लिंकेज का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज का नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें एक साइड का OH और दूसरे साइड का H जाएगा, और जो O था ना वो मिडल में आ जाएगा। देखो कैसे, चलो ये हमने इरेज कर दिया, ये भी यहां पे हमने इरेज कर दिया, और यहां पे अभी ऐसा अटैचमेंट हो गया। तो ये बन गया अपना सुक्रोज, ये बन गया अपना सुक्रोज। तो अगेन सुक्रोज कैसे बना, चलो समझ में आया होगा। ये जो लिंकेज है इनका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके तो ये सुक्रोज की। अब देखो ग्लूकोज में कौन से नंबर का कार्बन उस पे CHO ग्रुप हम लिखते थे, आंसर इज फर्स्ट। फ्रुक्टोज में कौन से कार्बन का कार्बोनिल कार्बन का नंबर कौन सा था, सेकेंड। ग्लूकोज का फर्स्ट वन, सेकेंड फ्रुक्टोज का सेकेंड वन, और दोनों जब भी अटैच होते थे तो यहां पे अब जो CHO ग्रुप और CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप थे वही यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यहां पे पार्ट ले रहे हैं। अगेन मैं फिर से बोलता हूं, C1OC2, C1OC2। तो C1OC2 में अटैचमेंट कैसे होगा स्टूडेंट्स, तो इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और अटैचमेंट जब भी होगा तो सुक्रोज में CHO ग्रुप ग्लूकोज का और कीटोन ग्रुप फ्रुक्टोज का, ये दोनों फ्री स्टेट में नहीं है, क्योंकि यही दोनों पार्ट ले रहे हैं इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हियर, C1 of CHO group of glucose and C2 that is a carbonyl carbon of the fructose are taking part to form the glycosidic linkage, so that it is not in a free state. That's why sucrose is a non-reducing sugar. अब रिड्यूसिंग शुगर हुई तो वो क्या करेंगे, तो रिड्यूसिंग शुगर फेहलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन कर पाएंगे। कौन कर पाएगा, रिड्यूसिंग शुगर्स। यहां पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्यों, क्योंकि वो रिडक्शन कब होगा फेलिंग और टॉलेंस का, तो जब CHO ग्रुप फ्री स्टेट में होगा तभी, और यहां पे ये फ्री स्टेट में है ही नहीं। That's why sucrose is a non-reducing sugar, because it cannot reduce failing solution as well as first is a failing solution and the second one is tolerance reagent, और ये दोनों रिएक्शन चैप्टर नंबर 12 में दी है। ओके तब हम देखेंगे वो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हुई फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट। ओके तो चलो ये फंडामेंटल कंप्लीट हुआ सुक्रोज का कि वो क्यों रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट इज माल्टोज।
maltose is a combination of alpha D plus glucose, and actually second one is alpha or beta, any one. Again, the second one is alpha or beta, any one, means I am writing only D plus glucose. यहां पे अटैचमेंट हो रहा है C1OC4. सुक्रोज में अटैचमेंट था कौन सा? सुक्रोज में कौन सा अटैचमेंट था भाई? सुक्रोज में अटैचमेंट था C1OC2. यहां पे अटैचमेंट है C1OC4. ओके, चलो अब ध्यान से देखो. यहां पे अटैचमेंट में देखो एज यूजुअल रेगुलर 1 2 3 4 5 एंड 6. सिमिलरली यहां पे भी 1 2 3 4 5 एंड देन 6. चलो यहां पे H ऊपर OH नीचे, यहां पे H ऊपर OH नीचे, यहां पे ऊपर OH नीचे H, यहां पे H OH, और यहां पे CH2OH एंड H. CH2OH and here is H. ओके, चलो यहां पे भी H एंड OH. चलो मैंने अल्फा लिया है, अल्फा और बीटा यहां पे कोई भी होगा. H और OH, OH एंड H, H एंड OH, CH2OH एंड H. और यहां पे अटैचमेंट होगा C1OC4. तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट हम जो भी लिखते हैं उसका OH और सेकेंड का H, या तो फिर यहां का OH और यहां का H. इन शॉर्ट हमें C1OC4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पे हमें आपको मिलेगी. दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और जो सेकेंड वन जो अटैच होता है ना, उसका CHO ग्रुप वो तो फ्री स्टेट में ही होगा क्योंकि अटैचमेंट हो रहा है C1OC4 में. दैट्स व्हाई दिस माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ओके, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. चलो, और समझ में आ गया होगा सबको. नेक्स्ट, गैलेक्टोज. चलो, गैलेक्टोज में क्या होगा? गैलेक्टोज में क्या होगा? चलो अब देखो यहां पे, तो गैलेक्टोज में उसका स्ट्रक्चर कैसा है पहले वो देखते हैं हम. चलो, गैलेक्टोज में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्ट्रक्चर, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ही है. ओके, तो देखो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा है. O तो अब देखो यहां पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. चलो फर्स्ट पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? H एंड OH. सेकेंड पे H एंड OH. थर्ड पे एज यूजुअल हम लिखते हैं H एंड OH. अब फोर्थ पे सिर्फ उल्टा आएगा OH एंड H, और सिक्स्थ पे रेगुलर. मतलब जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करते हैं? फोर्थ पे हम ऊपर H और नीचे OH लिखते हैं. तो यहां पे आएगा OH और H की पोजीशन
सिर्फ इन्वर्ट हो जाएगी. सो दिस वन इज, चलो अब ये अल्फा ही है क्योंकि अल्फा इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एनोमेरिक कार्बन. सो द नेम ऑफ द sugar is, it is alpha D plus galactose. ओके चलो अब बीटा क्या होगा. बीटा में सिर्फ क्या होगा, जो फर्स्ट वन हम लिखते हैं ना उसमें OH ऊपर और H नीचे. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये हुआ अल्फा और बीटा. इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट पेज में हम ड्रॉ करेंगे ही यहाँ पे. तो lactose sugar which is present in a milk, it is formed by the combination of beta D plus galactose and D प्लस ग्लूकोज. ये कोई भी होगा क्योंकि यहां पे भी अटैचमेंट कौन सा होगा, C1OC4 होगा. यहां पे भी अटैचमेंट कौन सा होगा, C1OC4 अटैचमेंट होगा. चलो एक बार फिर से फटाफट ड्रॉ कर देते हैं. बीटा डी प्लस गैलेक्टोज है यहां पे, पायरेनोज रिंग, ये फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. यहां पे ऊपर OH नीचे H. चलो सेकेंड पे H एंड OH, थर्ड पे OH एंड H, OH एंड H और रेगुलर CH2OH एंड H. तो ये हुआ अपना बीटा डी प्लस गैलेक्टोज. और दूसरा वाला है यहां पे ग्लूकोज, वो अल्फा बीटा कोई भी होगा. क्यों, एनोमेरिक कार्बन यहां पे फ्री स्टेट में है. फर्स्ट वन H और OH, चलो हमने यहां पे अल्फा लिखा है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. सेकेंड पे H एंड OH, थर्ड पे OHH. चलो ये तो अपना ग्लूकोज ही है, मतलब H और OH ऐसे ही आएंगे. और सिक्स्थ पे CH2OH एंड H. चलो अटैचमेंट कैसे होगा, OH दोनों गए और फिर यहां पे आएगा ऑक्सीजन. ओके तो ये अटैचमेंट हुआ C1OC4. ये अटैचमेंट हुआ C1OC4. और यहां पे भी फर्स्ट का जो है ना वो फ्री स्टेट में है, CHO फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग सुगर because it can reduce Fehling solution and Tollens reagent. ओके चलो तो ये हुआ अपना लैक्टोज. ओके तो स्टूडेंट्स सब स्ट्रक्चर्स लर्न करो और सबकी रीजन लर्न करो. ओवर आज का लेक्चर.